Assalamualaikum student. Today we are discuss part of speech. It is the initial topic of English grammar. So let's start. First we have the definition of noun. Noun basically is a word that we use for a name of person, place, thing or idea. Any name is called noun. We have the examples of noun. The teacher is writing on the board. In this sentence, teacher and board is noun. In the next sentence, house is noun. In this sentence, friend, cricket and Sunday is our noun. We went to the park in the evening. Here, park and evening is the noun. Honesty is the best policy. Here, honesty and policy is our noun. Then we discuss pronoun. Pronoun basically is a word that we use for the take place of a noun to avoid repetition. Basically, if we want to summarize our sentence, so we are using noun. Suppose that you have a sentence that Sarah and Asma are good friends, and you want that the sentence would be summarized and you are not want to mention the noun, so you are using that we are good friends. So इस तरह के जो sentences होते हैं उसमें हम pronoun का use कर रहे होते हैं sentence को summarize करने के लिए. उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल्स है प्रोनाउन की. शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. सो हेयर शी इज़ आवर प्रोनाउन. ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल. हेयर ही, दिस, माइन, दी एंड यू एंड दिस इज़ आवर प्रोनाउंस. इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन ऑफ वर्ब है. Verb basically we are using for any action of state being the action where your body is performing, so it is called verb action. ठीक है, like you are sleeping, writing, watching, cooking, listening. So आपकी body perform कर रही है. ठीक है, you are doing any action, so it is called verb. Here the examples of verbs. The baby is sleeping. Here sleeping is our verb. Writes, and the sentence is going, ate, finished. So in this sentences जो है इनके अंदर जो words मैंने आपको बताए हैं, this is called verb because here action is performing. Then we have adjective. Adjective basically we are using to describe a noun or pronoun, bad and good things of a noun or pronoun. ठीक है, अच्छा ये खासियत बताना noun की या pronoun की, so it is called adjective. हमारे पास यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है. शी वॉर अ ब्यूटीफुल ड्रेस. हेयर शी जो हमारे पास है ये प्रोनाउन है एंड ड्रेस इज अवर नाउन. और ये जो ब्यूटीफुल है ये क्या बता रहा है कि उस लड़की ने, ठीक है, शी, उसने जो पहना है ड्रेस वो ब्यूटीफुल है, तो ड्रेस हमारा नाउन है एंड जो उसकी खासियत क्या है कि वो ब्यूटीफुल है, सो इट इज़ एडजेक्टिव. द मेन वॉक स्लोली. द मेन नाउन एंड वो वॉक्स क्या करता है स्लोली, सो स्लोली इट्स एन एडजेक्टिव. हेयर ट्री एंड फनी and in this sentence blue is our adjective. Then we have adverb. Adverb is a word that adds more information about a verb or another adverb. In simple words अगर हम कहते हैं adverb हमें बताता है कि किस तरह कोई चीज़ happen हुई, ठीक है, कहाँ हुई, कब हुई. तो ये तमाम चीज़ें हमें adverb के थ्रू पता चलती है कि हमने कैसा एक्शन परफॉर्म किया, किस वक्त किया. ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमें कौन बता रहा है, एडवर्ब बताता है. सम कॉमन एडवर्ब्स मैंने यहाँ पर कुछ मेंशंस किए हैं जिससे आपको थोड़ा सा गाइडलाइन मिलेगी. बिकॉज जो एडवर्ब्स है वो टाइम के लिए भी है, मैनर भी है, प्लेस है, फ्रिक्वेंसी और डिग्री वगैरह के लिए भी यूज़ होते हैं. तो ये आप थोड़े से रीड कीजिएगा एंड दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू. वी हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब. ही स्पीक्स लाउडली. सो हेयर लाउडली इज़ आवर एडवर्ब. शी विल कम टुमारो. हेयर टुमारो इज़ आवर एडवर्ब. अब देखिए शी स्पीक्स लाउडली, यहाँ पे क्या बताया कि वो तेज़ बोलती है, सो लाउडली. ठीक है, अब ये क्या हो गई कि उनके एक किसी की बात हुई है एंड उसको बताया गया है कि वो कैसे बात कर रहे हैं. यहाँ पे कह रहे हैं कि शी विल कम टुमारो, सो हियर टाइम की मेंशन किया जा रहा है. सो द बॉय रन क्विकली. सो यहाँ पे जो बॉय है वो क्विकली रन करता है, तो उसकी स्पेसिफिकेशन बता दी गई है. Now we discuss preposition. So preposition basically shows the relationship between a noun and a pronoun. And in other words, our sentence is not complete without preposition. You see that in every sentence we are using preposition. Like I go to school. So here to is a preposition. So
हमारे जितने भी सेंटेंसेस हैं विदाउट प्रपोजिशन हम उससे कंप्लीट नहीं कर पाते। सो यहाँ पर मैंने कुछ प्रपोजिशन राइट किए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसकी डिटेल वीडियो अबाउट द प्रपोजिशन टॉपिक आपको मिले, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उसके थ्रू इसको डिटेल में भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है। द बुक इज़ ऑन द टेबल। ऑन फिजिकली तौर पर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर मौजूद है, सो ऑन द टेबल। बुक क्या है, टेबल के ऊपर है। द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द बेड। जो अंडर वी आर यूजिंग के कोई किसी चीज़ के अंदर है। द कैट क्या है, छुपी हुई है। द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द बेड, बेड के नीचे। वी वेंट टू द मार्केट। टू वी आर यूजिंग फॉर डायरेक्शन। शी सेट बिसाइड मी, बिसाइड के साथ, तो वो मेरे साथ बैठी है। शी वॉज बॉर्न इन जनवरी। सो इन वी आर यूजिंग फॉर डेज ऑल्सो एंड ईयर्स के लिए भी हम इनका यूज़ कर रहे होते हैं। आई रीड अ बुक अबाउट एनिमल्स। ठीक है, अबाउट्स के आई वॉन्ट टू आई रीड अ बुक्स लाइक एनिमल्स के बारे में जो बुक्स है वो मैं रीड करती हूँ। ठीक है, सो इस तरह के सेंटेंसेस है, ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा कंजक्शन। अ कंजक्शन बेसिकली ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेट हम जब पैराग्राफ्स के फॉर्म में भी काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम ज्वाइन करते हैं कहीं बट लगा के, बिकॉज, सो दैट, थ्रू, ऑल्दो और अनटिल एक्सेट्रा, और भी मज़ीद हो सकते हैं। सो हम इन सब चीज़ों के यूज़ से उसको मज़ीद क्या करते हैं, इन्हांस कर रहे होते हैं अपने उसको। जैसे आई एम गुड फॉर कुकिंग बट माई सिस्टर इज़ गुड फॉर राइटिंग द लेटर्स। सो इस टाइप के सेंटेंसेस हो गए, पैराग्राफ्स हो गए, उसमें हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ कंजक्शन की एग्जांपल्स है। आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। सो यहाँ देखिए एंड का इस्तेमाल है। बट वेट हर, उसका वेट हियर, यहाँ इंतज़ार करें अनटिल आई कैम बैक, तो यहाँ अनटिल का यूज़ है। सो इस तरह के देखें सेंटेंसेस है, इसके अलावा मज़ीद भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बेसिकली एक्सप्रेस करता है कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज। कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन, आपको पता चला डेट योर फ्रेंड गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, सो द एक्सप्रेशन डेट यू आर एक्सप्रेसिंग, ओ वाओ यू आर गेटिंग द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज, अचानक से एक्सप्रेशन जो निकलते हैं आपके, सो वो हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ इंटरजेक्शन राइट है, देखें वाओ। ठीक है, वाओ बेसिकली व्हाट अ परफॉर्मेंस। वाओ जब आप यू आर फीलिंग बहुत अच्छा फील कर रहे हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उसके लिए। उप्स आई ड्रॉप द क्लास। हे स्टॉप राइट देयर। ओ नो फॉरगॉट माय होमवर्क। ये वी वॉन द गेम। उसके अलावा अलास हो गए, इस तरह के भी कुछ और इंटरजेक्शन भी होते हैं। So this is a part of speech practice exercise. This is helpful for your understanding that how much you understand from my explanation. So in the first sentence यहाँ पर जो wow है, wow it is our interjection. The little girl, little is our adjective, girl is our noun, ran it is our verb, and quickly is related to adverb, to our preposition, and her is our pronoun, एंड मदर इज़ आवर नाउन। सो आपके पास ये 20 सेंटेंसेस मैंने गिवन किए हैं जो आपने रीड आउट करने हैं, एंड इसमें कौन कौन से वर्ब है, एडजेक्टिव है, उनको सेपरेट करके कमेंट में मुझे आपने बताना है। एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी अबाउट दैट, सो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।